روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ کو آج 28 روز ہو چکے ہیں۔ روسی افواج کو زمینی سطح پر یوکرینی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روس نے اب اپنے فضائی حملوں میں تیزی لائی ہے۔ شدید روسی فضائی حملے سے محاصرہ زدہ ماریوپول شہر راکھ میں تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ بندرگاہی شہر میں سڑکوں پر لڑائی اور بمباری جاری ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری مذاکرات ایک دوسرے کے مفادات سے متصادم ہیں، لیکن ان میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب مغربی ممالک انسانی بحران کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر کرملن کے خلاف مزید پابندیوں کا اعلان کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے حکم دیا ہے کہ روس کی قدرتی گیس کی ادائیگی روسی کرنسی روبل میں کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا اقدام ہے جو نام نہاد غیر دوستانہ ممالک کو متاثر کرے گا۔ پوتن نے کہا کہ متعدد مغربی ممالک نے روسی اثاثوں کو منجمد کر کے ناجائز فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب نے دراصل روس کو معاشی اعتبار سے مزید مضبوط کر دیا ہے، مغربی کرنسیوں پر روس کے اعتماد کو ختم کر دیا ہے۔ پوتن نے کہا کہ روس پہلے سے طے شدہ معاہدوں کے مطابق قدرتی گیس کی سپلائی جاری رکھے گا۔ Западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют. Об этом тоже мы уже говорили. Перечеркнул доверие к этим валютам. Принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого. С нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские. یوکرین میں اب تک روس کو متوقع کامیابی نہیں ملی ہے۔ یوکرین کی فوج روس کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ ایسے میں پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ولادیمیر پوتن کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ مغربی ممالک کے جاسوسوں نے اس کا دماغ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ کیا ہوگا روس کا اگلا قدم؟ پوتن کا دماغ پڑھنے کو کیوں بےتاب ہے جاسوس؟ کیا الگ تھلگ پڑ گئے ہیں ولادیمیر پوتن؟ کیوں مشکل میں ہے جاسوس؟ کیا خیالی دنیا میں قید ہے پوتن؟ مغربی ممالک کے جاسوس روسی صدر ولادیمیر پوتن پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ پوتن کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ یوکرین میں روسی فوجیوں کو متوقع کامیابی نہ ملنے کے بعد پوتن کے اگلے اقدام کا پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے روسی صدر کے دماغ میں اترنے کو لے کر ان جاسوسوں کی بےتابی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مغربی جاسوسوں کا خیال ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خیالی دنیا میں قید ہیں اور یہی بات انہیں پریشان کرتی ہے۔ یہ قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہی ہیں کہ روسی صدر بیمار تھے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وہ دراصل تنہائی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے کسی قسم کے متبادل نظریات کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ ان کی تنہائی ان کی ملاقاتوں کی تصاویر سے عیاں ہے، جب انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ایک بڑے میز کی دوسری جانب سرے پر بیٹھ کر ملاقات کی تھی۔ یہ صدر پوتن کی یوکرین جنگ شروع ہونے سے ایک رات قبل اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات کی تصاویر سے بھی ظاہر ہے۔ ایک انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق ولادیمیر پوتن کا ابتدائی فوجی منصوبہ روس کی خفیہ ایجنسی KGB کے ایک افسر نے تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ فوجی کمانڈروں کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ فوجیوں کو یہ بتائے بغیر سرحد پر بھیج دیا گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے مغربی ممالک کے جاسوس یوکرین جنگ سے متعلق روسی منصوبوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ مغربی جاسوسوں کو اب ایک نئی مشکل کا سامنا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روسی صدر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور یہ جاننا کوئی آسان کام نہیں۔ پوتن کا حلقہ کبھی بڑا نہیں تھا، لیکن جب یوکرین پر حملہ کرنے کا فیصلہ آیا تو یہ حلقہ صرف چند مٹھی بھر لوگوں تک محدود رہ گیا۔ ان کا اندرونی حلقہ کتنا چھوٹا ہو گیا ہے، اس کا احساس اس وقت شدت سے ہوا تھا جب انہوں نے حملے سے عین قبل قومی سلامتی کے اجلاس میں اپنی ہی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کو سر عام ڈانٹ کر ان کی تذلیل کی تھی۔
поддерживаю. Говорите прямо, поддерживаю. चंद घंटों बाद उनकी तकरीर से ये भी जाहिर हो गया था कि वो एक घुसीले यूक्रेन और मगरिब के जुनून में मुब्तला शख्स हैं। सन 2014 में जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने सदर ओबामा को बताया था कि सदर पुतिन एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। हाल ही में जब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की सदर पुतिन से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उन्हें माजी की मुलाकातों के मुकाबले में मजीद जिद्दी और मजीद तन्हा पाया था। बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह सर जॉन सॉवर्स का कहना है कि रूस जैसे मुल्क के महफूज निजाम में कुछ भी जानना मुश्किल है, खासकर एक ऐसे वक्त पर जब पुतिन के अपने बहुत से लोग नहीं जानते कि हो क्या रहा है। इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि सदर पुतिन और उनकी अपनी दुनिया में बाहर से बहुत ही कम मालूमात की रसाई है, खुसूसन ऐसी कोई बात जो उनकी सोच को चैलेंज कर सकती है। साबिक अमेरिकी सरकारी फिजिशियन और सफारतकार केन डेक्लियो कहते हैं कि पुतिन मुमकिना तौर पर जहनी बीमार नहीं है और न ही उनमें कोई तब्दीली आई है, अलबत्ता वो ज्यादा जल्दी में दिखाई देते हैं और मुमकिना तौर पर वो हालिया बरसों में ज्यादा तन्हा हो गए हैं। मुमकिन है कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज शायद यूक्रेन पर हमले से कबल उन्हें वो कुछ बताने से गुरेजा हों जो वो सुनना नहीं चाहते थे और उन्हें ये खुशफहमी पर मबनी अंदाजे पेश किए गए हों कि हमले कैसे होंगे और जंग से पहले रूसी फौजियों का इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। हाल ही में एक अहलकार ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन अभी तक इस बात से वाकिफ नहीं है कि उनके फौजियों के हालात कितने खराब हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान यूरोप का दौरा कर रहे हैं। बाइडेन इस हफ्ते ब्रसेल्स और वारसाओ में अहम इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को बड़ी तबाही की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश के ज़िम्न में होगी। बाइडेन का ये 4 रोज़ा दौरा होगा। जो बाइडेन ने कहा कि खदशा है कि रूस कीमियाई या जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसे यूक्रेन की शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। I'm going to say that to their face. I'm going to say all I have to say, I'm going to say when I get there. But I'll be happy to talk to you guys when I get back. How many are you coming? They're there. Do you have any message? I know. Do you have any message for Vladimir Putin? Mr. President, how concerned are you about the threat of chemical warfare right now, that Russia would use chemical weapons? How high is that threat? I think it's a real threat. Thank you. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जापान की पार्लियामेंट के अराकीन से वर्चुअल खिताब किया। अपनी तकरीर के दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस पर पाबंदियां आयद करने की मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की पार्लियामेंट में जापानी कानून साजों से अमली तौर पर खिताब करने वाले पहले रहनुमा हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जापान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। Навіть міліметр між нашими столицями, навіть секунди між нашими відчуттями, бо ви одразу прийшли на допомогу нам. І я вдячний вам за це. Коли Росія зруйнувала мир для всієї України, ми одразу побачили, що у світі по-справжньому проти війни, по-справжньому за свободу, по-справжньому за глобальну безпеку, по-справжньому за гармонійний розвиток кожного суспільства. Японія стала лідером такої позиції в Азії. Ви одразу почали працювати. यूक्रेन के यतीम बच्चे महफूज पनाहगाह की तलाश में पोलैंड का रुख कर रहे हैं। कुछ बच्चे पोलैंड के रास्ते लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन कागजात की अदम दस्तियाबी से उन्हें एयरपोर्ट पर सफ़र करने से रोक दिया गया। देखिए रिपोर्ट। दर्जनों यूक्रेनी बच्चे और इनकी देखभाल करने वाले अफराद पोलैंड से बरतानिया के लिए रवाना होना चाहते हैं, लेकिन दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी की वजह से वो अब भी पोलैंड में फंसे हुए हैं। ये दर्जनों अफराद यूक्रेन के शहर दिनिप्रो और इसके आसपास के यतीम खानों से हैं। इनके सफर का एहतमाम एक स्कॉटिश खैराती इदारे निप्रो किड्स ने किया था, जिसे स्कॉटलैंड के दारुल-हुकूमत एडिनबरा में हाइबरनियन फुटबॉल के हामियों ने तश्कील दिया था। We evacuated 46 orphans in 2 groups. We were able to get them on a train from Dnipro to Lviv. We then bussed in a coach from
Poland, in Tel Aviv, we collected the groups, and we were fortunate we had some foundations and charities in Poland that helped us source accommodation and kept the children well fed. So that's where they've been staying the past 2 weeks. They've been in a town called Znin, and we just want to go to London now. ये परवाज वारसो से लंदन और वहां से स्कॉटलैंड के लिए रवाना होने वाली थी। तहम यूक्रेनी हुक्काम से कागजी कार्रवाई मुकम्मल न होने की वजह से वो वारसो के एक होटल में फंस गए हैं। पोलैंड में हुक्काम का कहना है कि जब तक कि कागजी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती ये मामला हल नहीं होगा। मशरक़ी यूक्रेन का अहम सनती शहर दिनिप्रो रूसी फिजाई हमलों का निशाना बना हुआ है। They are children from orphanages, so they have their guardians, their mothers as they call them, with them. So each group has a mother in charge who has parental rights to that group of children. So this isn't a random group of children that we've picked up along the way. These are small organisations who've been caring for these children for years, and all we want to do is give them safe temporary sanctuary in Britain until the war's over and it's safe for them to go home. बरतानवी हुकूमत ने यतीमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशों की हिमायत की है। बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि बरतानवी हुक्काम पोलैंड और यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यूक्रेनी बच्चों की बरतानिया में तेजी से आमद को यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कीव के मेयर ने सहाफियों से बात करते हुए रूसी अफवाज से लड़ने पर यूक्रेन के फौजियों का शुक्रिया अदा किया। मेयर ने कहा कि कीव के शुमाल में 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ गाँव में लड़ाइयाँ जारी हैं और यूक्रेन की अफवाज ने शुमाल मगरिब और शुमाल मशरक़ के इलाकों का कंट्रोल वापस छीन लिया है। उन्होंने कहा कि मगरिबी कस्बे मार्कीफ को भी यूक्रेनी फौजियों ने वापस ले लिया है। कीव के मेयर ने जानकारी देते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन के दारुल हुकूमत में 4 बच्चों समेत 264 शहरी हलाक हो चुके हैं। Top secret, the target of aggressors is capital of Ukraine. The aggressors have plans 3 weeks ago to be in capital, to be here, because it's the heart of the country. And a lot of attack from north and east right now to our city. I am very appreciate and huge respect for every Ukrainian fighters, for every Ukrainian soldier who defend our country, who defend our families. जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने इस बात का इयादा किया है कि उनका मुल्क यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन या रूस की तरफ से शुरू की गई जंग में मुदाखलत के लिए फौज भेजने की हिमायत नहीं करेगा। ओलाफ ने जर्मन कानून साजों को बताया कि नेटो जंग का फरीक नहीं बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने यूरोपीय इत्तेहादियों और अमेरिका के साथ इस पर मुत्तफिक हैं। Kriegspartei, da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig. Und Munition an die Ukraine. Die Europäische Union stellt zusätzlich 1 Milliarde an Militärhilfe bereit. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern haben wir Sanktionen verhängt, die ihresgleichen suchen. Über Monate hinweg haben wir sie bis ins kleinste Detail vorbereitet, damit sie die richtigen treffen, damit sie wirken. Über Jahrzehnte hinweg ist unsere Abhängigkeit von Öl, Kohle und Gas aus Russland gewachsen. रूसी अफवाज की बमबारी के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का अंदाजा है कि तकरीबन 6.5 मिलियन अफराद यूक्रेन में जंग की वजह से अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं। हर तरफ जंगी अलर्ट सायरन की आवाज़ों के बीच लोग हिजरत कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हजारों यूक्रेनी बाशिंदों का मुल्क के मगरबी हिस्से में लीव के मरकजी ट्रेन स्टेशन से आना जाना जारी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन का अंदाजा है कि तकरीबन 6.5 मिलियन अफराद यूक्रेन में जंग की वजह से अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीरों के इदारे का कहना है कि रूस के हमले के बाद से 3.5 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन से फरार हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दूसरी जंग अजीम के बाद से यूरोप में पनाह गज़ीरों का बदतरीन बहरान पैदा हुआ है। लीव में लोग रोते हुए अपने चहीतों को अलविदा कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे पोलैंड जाने वाली ट्रेनों में सवार हो रहे हैं, जबकि मर्दों को रूसी अफवाज से मुकाबला करने के लिए रुकने को कहा गया है। В поезде мы были чуть больше суток. Было очень много людей, но это мелочи. Это абсолютно, это не важно, абсолютно. То есть, главное, что все едут, все живы, здоровы, каждый пытается вырваться, и это не имеет значения. मारियोपोल में रूसी हमलों से बच जाने वाले थके हारे सैकड़ों यूक्रेनी ट्रेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर महफूज पनाहगाह के लिए सफर कर रहे हैं। उनमें जूलिया भी थी, जो 19 मार्च को अपने शौहर और बेटे के साथ मारियोपोल से निकली और एक ट्रेन के जरिए लीव पहुंची। Про то, что там люди не имеют возможности о себе заявить, о том, что они нуждаются в помощи. У людей нет элементарной питьевой воды. Люди пьют воду не то что техническую, а вообще непонятно какую. यूं तो ये ट्रेनें शोर करते हुए अपना रास्ता तय कर रही हैं, लेकिन कई मकामात पर जंगी अलर्ट सायरन की बुलंद आवाज में ट्रेन का शोर दब कर रह जाता है। सायरन की आवाजें फरार होने वालों को याद दिलाती हैं कि मगरिब में अब भी फजाई हमलों का खतरा मंडला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मशरिक़ी वस्ता के अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर टूर वेनिसलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बताया कि इसराइली बस्तियों की तौसीअ मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़े में तशद्दुद को हवा दे रही है और कब्ज़े को मज़ीद तक़वियत दे रही है। साथ ही फ़लस्तीनियों के हक़, खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के हक़ को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 6,70,000 इसराइली शहरी मशक़ी यरूशलेम समेत मक़बूज़ा मगरबी किनारे में 130 से ज़ायद गैर कानूनी बस्तियों और 100 से ज़्यादा चौकियों में मुक़ीम है। उनका कहना था कि मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ों में मुसलसल जानों के ज़िया और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल निहायत परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुमकिन तौर पर हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल संगीन खदशात को जन्म दे रहा है। साथ ही मशरिक़ी यरूशलेम और उसके इर्द गिर्द इस्राएली आबादकारी की बढ़ती हुई पेशरफ्त तशवीश का सबब है। I remain deeply concerned by the continued settlement advancement by Israel in the occupied West Bank, including East Jerusalem. Settlement expansions continue to fuel violence in the OPT, further entrenching the occupation, undermining the right of Palestinian people to self-determination and independent statehood, and eroding the possibility for establishing a continuous and viable Palestinian state. Deeply troubled by the continued loss of life and injuries, including of children in the OPT, and the overall deterioration of the security situation, including an apparent increase in shooting attacks during the reporting period. अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने मुल्क भर में लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल खुलने के चंद घंटे बाद ही उन्हें बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। लड़कियों के स्कूलों की बंदिश से मुतल्लिक अहकामात ने तालिबात और वालिदैन को परेशान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अफगान हुकाम ने तालिबात के लिए आज से हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस ले लिया गया। आज सुबह स्कूल पहुंचने वाली तालिबात को घर जाने का हुक्म दिया गया। लड़कियों के स्कूलों की बंदिश से मुतालिक अहकामात ने तालिबात और वालिदैन को परेशान कर दिया है। 7 माह बाद स्कूल खुल गए थे और पहले रोज क्लासेस में हाजिरी भी ज्यादा थी, लेकिन स्कूल खुलने पर तालिबात की खुशी आरजी साबित हुई। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक तालिबान हुक्काम ने हुक्म दिया है कि तालिबात के स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ये अहकामात ऐसे मौके पर सामने आए हैं जब स्कूल खुले चंद ही घंटे हुए थे। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका
कि तालिबात के सेकेंडरी स्कूलों की बंदिश के अहकामात के पस पर्दा क्या वजूहात हैं। अफगानिस्तान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने वजारत तालीम के हवाले से बताया है, छठी जमात से ऊपर लड़कियों के हाई स्कूलों को मुत्तला किया जाता है कि इन स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों को अगले अहकामात तक मुलतवी कर दिया गया है। नए हुक्मनामे में कहा गया है कि शरई और अफगान रिवायात और सकाफत के मुताबिक जब अमारत इस्लामिया कोई जामे मंसूबा बना लेगी तो हाई स्कूलों को बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तला किया जाएगा। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने गर्ल्स हाई स्कूल की बंदिश की मजम्मत की है। गुज़िश्ता साल अगस्त में इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान ने कई हुक्मनामे जारी किए थे, जिनमें ख़वातीन की मुलाजमत, सफर और लड़कियों के तालीम पर मुकम्मल पाबंदी जैसे ऐलानात शामिल थे, जिसके बाद आलमी बिरादरी ने न सिर्फ तालिबान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, ओस्लो कॉन्फ्रेंस के मौके पर मगरबी ममालिक के नुमाइंदों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को मुल्क में ख़वातीन के हुकूक, तालीम, आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक की फराहमी से मशरूत किया था। बैनुल-अक़वामी दबाव ने तालिबान को अपने फैसलों पर नजरसानी पर मजबूर किया। रवा बरस जनवरी में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने नए तालीमी साल के आगाज पर तमाम तालीमी मराकिज़ खोलने का इंदिया दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।